Good afternoon, everyone. So, someone said, and I quote, "The best way to predict future is to create it." And here we are today, united and gathered in the name of creativity and innovations to furnish you with the knowledge of entrepreneurship through the story of an entrepreneur. Hello, everyone, and good afternoon. I am Nivedita Upadhyay, your host for today's event. Now, to say least, entrepreneurs doesn't pursue for any specific knowledge. They grab knowledge from their surroundings and transform it into most appropriate idea for themselves. All around ourselves, we can observe that day by day, new ideas are solving the social causes are coming up one by one, whether it is related to online payments, traveling, daily accessories for use like lenses, spectacles, groceries, etc. Topic for today's webinar is focusing on a case study of successful entrepreneur Mr. Piyush Bansal, co-founder of Lenskart. How it began, what would have been idea behind this, how they withstood by the failures, how it's still successful. These may be some of the questions which will knock the doors of your curiosity. And definitely, we would discover the answers of these questions till the end of this case study. Now we are beginning with the presentation.
Thanks, Nivedita. Now we would start with the presentation. Just a moment. Let me share my screen. I would like to request the host to allow me to share my screen. Grant me the permission. Yeah. So टुडे आज हम लोग क्या बोलते हैं लेंसकार्ट एक जो हमारी कंपनी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे एंड उसके केस स्टडी के बारे में बात करेंगे. Now, as we all know that Mr. Piyush Vanshal, the founder of Lenskart, is quite a renowned personality, especially in the recent past, thanks to the great show named Shark Tank. और Lenskart की जर्नी करीब 2010 के आसपास शुरू हुई थी, जिसमें पीयूष वंशल ने ये विजन देखा कि जिसमें वो सबकी आईसाइट को क्योर करने kindly grant me the permission to share my screen. I would request from the host to grant me the permission for sharing my screen.
Again, really sorry for the inconvenience. We would proceed with the presentation. Just a moment. Yeah. So, as I was speaking earlier, the Lenskart was founded in 2010 by Mr. Piyush Bansal and his two other fellow mates. Now, Mr. Bansal himself was an engineer, and along with his friends. So, when he was working in a Microsoft company back in 2005 till 2008, जब उन्होंने realize किया कि उनको कितनी ज़्यादा problems face करती हैं and he should work for India too. So वो इंडिया वापस आके अपनी जॉब क्विट करके and in the year 2010 and he wanted to help the world. And तो उन्होंने ये चीज़ realize की कि इंडिया में nearly 550 million people को uh, just a moment. Okay. Yeah. So then he came to India and he realized कि इंडिया में कितने ज़्यादा resources की कमी है regarding when it comes to especially comes to eyesight. यहाँ पे nearly 550 million peoples की आंखें खराब हैं and they need eyewear and spectacles. दो उनमें से सिर्फ 50% ही उसको परचेज करते हैं एंड अफोर्ड कर पाते हैं. ऑन फर्दर रिसर्च ही फाउंड आउट कि यहाँ पे एक तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है एंड सेकंड चीज उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर एक अनब्रांडेड मार्केट में यहाँ पे आपको किसी भी स्पेक्स के लिए क्योंकि बहुत ही बेसिक नीड है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेगमेंटेड एरिया है मेडिकल नीड है ये एंड अगर किसी को पता चलता है कि उसको एक आई साइट की प्रॉब्लम है देन spectacles and the lenses are the cheaper options to go for. Yet back in early 2000s ऐसा नहीं था. The prices in the early 2000s in India they were quite expensive. The most cheapest one used to cost around 250 rupees and some without उनमें कोई वारंटी नहीं मिलती थी आपको ना ही कोई गारंटी मिलती थी. बहुत ही पुअर क्वालिटी होती थी एंड जहाँ पर आपको फर्स्ट सर्विसेज भी नहीं मिलती थी किसी तरीके की. बट जहाँ पे जब कोई ब्रांडेड कंपनी यहाँ पे आती थी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो उनका चीपेस्ट जो प्रोडक्ट होता था वो नियरली 1500 रुपीज होता था जो कि टाइटन आई प्लस था. अब हम लोग को लगता है कि शायद इतना ज्यादा प्राइस रखना वर्थ इट होगा क्योंकि यह जस्टिफाइबल होगा. वेल दैट इज नॉट द केस. अगर हम स्टैट्स देखें तो लेंसकार्ट की जो स्टैट्स हैं एंड जो आईवेयर के स्टैट्स हैं जस्ट अ मोमेंट क्या अगर रियलिटी देखी जाए इनमें तो वारबी पार्कर एंड लग्जॉटिका these are the two brand companies and इनका अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें एंड इनका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो देखें तो हमें पता चलेगा कितना ज़्यादा मेल डोमिनेंट रीजन है ये कितना ज़्यादा प्राइस डोमिनेटेड है. यहाँ पे कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है ये बात को जान के कि ये एक रिक्वायरमेंट है एंड अगर कोई कस्टमर है उसको खरीदेगा ही खरीदेगा क्यों क्योंकि उसकी नीड है उस चीज़ की. सो दे चार्ज टू द एट द हाई. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वारबी पार्कर इट्स क्वाइट अ रिनोन कंपनी इन स्पेक्टिकल्स इन आईवेयर्स. उनकी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $5 थी शिपिंग कॉस्ट $10 थी एंड मिसलेनियस $10 थी. सो इन टोटल एक पर्टिकुलर पेयर को मैन्युफैक्चर करने में उन्हें $25 का एक्सपेंस आ रहा था. येट दे वर चार्जिंग $95. Now $95 this price gap of $70 is quite expensive and this is just a bare minimum profit. इसमें कोई चार्जेस नहीं है कोई कुछ नहीं है. बस इस चीज का फर्क है क्योंकि वो जानते हैं दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कस्टमर इस चीज को खरीदेगा क्योंकि उसको नीड है. Not talking about the Luxottica. Now Luxottica is a parent company of which owns many eyewear labs and companies. The companies like Ray-Ban, Fastrack, and many more are owned by Luxottica, and they are manufactured under the same manufacturing line. So since Luxottica के अंदर कितने सारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं कंपनीज के तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है कंपैरेटिवली एंड शिपमेंट एंड स्टोरिंग का भी. जहाँ पे उनका टोटल कॉस्ट एक सिंगल पेयर को बनाने का आता है प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांडेड के विद द पर्क्स एंड द वर्किंगनेस is $34. Yet they charge $200 for each pair of the eyewear. ये $166 का जो आप गैप देख रहे हैं
स्ट्रेट अवे प्रॉफिट है। अगेन सिर्फ प्रॉफिट है, इसमें कोई, इसमें अगर कंपनी चाहे तो मार्जिन कम करके अफोर्डेबल रेट्स में पहुंचा सकती थी, येट ऐसा नहीं हुआ। एंड क्योंकि लोग चीपर प्राइसेस को चूज करते थे, देन वो सफर करते थे क्योंकि उनको एक क्वालिटी नहीं मिलती थी एंड सर्विसेज नहीं मिलती थी। See, Indian highway market in 2000s. Again, buying specs was a cumbersome procedure as the buyers had to first take time to go out to an optician. ऑब्वियसली बात है, अगर आपको आई टेस्ट होगा कोई भी जाएगा, आप आपको रियलाइज होता है कि आपको देखने में इशू हो रहा है, आपकी आई साइट हिंडर कर रही है। आप पहले ऑप्टिशियन के पास जाते थे, उसकी आप फीस सबमिट करते थे, आप आई चेक करते थे अपनी। देन ये भी एक कंडीशन थी कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो अब चांसेस होते थे कि बायर वहीं से परचेज करेगा, उन्हीं के यहाँ से परचेज करेगा। क्योंकि इसके से होता क्या था, क्योंकि और का ऑप्शन देखता नहीं था, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता था। देन द बायर हैड टू सेलेक्ट द फ्रेम्स फ्रॉम द लिमिटेड कलेक्शन, check on various styles and waiting for nearly a week before receiving the glasses. क्योंकि उसके पास एक ही इंसान के पास जा रहा है तो उसके पास वैरायटी कम होती थी चॉइस करने की, एंड उसको बेसिक फ्रेम डिजाइन चूज करने पड़ते थे, जिसकी वजह से उसके पास नहीं कोई ज्यादा लिबर्टी होती थी चॉइस चॉइस करने की, नहीं डिसीजन मेकिंग की, नहीं मार्केट रिसर्च करने की। अगेन जिसके बाद उसको नियरली एक वीक तक रुकना पड़ता था बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द glasses is completed and he receives them. And during that week, he used to face various troubleness. And back then, nearly 95% of the market was filled with the unorganized players selling cheap products with no guarantee and warranty. Yep. And on the organized market, the services was good, the product quality was good, but the cheapest specs available would cost rupees nearly 1500 rupees. That too only from 2007 and onwards. So हम लोग देख सकते हैं, एंड वो भी मतलब जो सबसे पहले ये जो ऑफर करते थे वो थी टाटा की आई प्लस। टाटा के आईवेयर जो थे वो इसको टाइटन के, वो इनको ऑफर करते थे, ये तो बहुत बेसिक लेवल्स होते थे। तो जब पीयूष बंसल यहाँ पर उन्होंने ये चीज देखी, देन ही रियलाइज कि मार्केट गैप बहुत ज्यादा है, एंड इन द प्राइसेस बिटवीन 250 एंड 1500 रुपीज वी वर barely any reputed brands. यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट ब्रांड नहीं था जो सर्विसेज एंड क्वालिटी दोनों प्रोवाइड करा पाए। देन assumptions, अगेन हम लोग एज्यूम करने पे लगता था कि शायद आईवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती होगी, जिसको जो कि ऐसा नहीं था, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द रियलिटी चेक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका था। जो जो प्रॉब्लम्स थी, प्राइस सेगमेंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो प्राइस सेगमेंट था वो रुपीज 250 से 1500 रुपीज था, जो कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास दोनों अफोर्ड कर पाते थे इजीली। क्योंकि बैक देन हम लोग आईवेयर को एज अ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रीट करते थे, ना कि एज अ लाइफस्टाइल इक्विपमेंट। नाउ अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना था तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, जैसे प्राइस सेगमेंट, इसी प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी उनको देनी थी एंड विद अच्छी प्रोडक्ट के साथ। माइंडसेट चेंज करना था, क्योंकि अभी भी लोगों को यही लगता था मेडिकल इक्विपमेंट है ये, एंड उनको काफी खराब सा लगता था कि दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, व्हिच वाज नॉट द केस। देन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज, अगेन फैसिलिटीज उतनी एक्सेसिबल नहीं थी। एक स्टिल देन आपको अगर आई चेक आपको आई में कोई इशू हो रहा है, देन आपको पहले टीचिंग के पास जाना पड़ता था, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। देन अपॉइंटमेंट के बाद जैसे वो आपको रिपोर्ट्स देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट डिसाइड करके अपना परचेज करना होगा। सो एक ये इशू होता था, एंड उसकी वजह से आपके पास चॉइसेस भी कम हो जाती थी, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा नहीं था इतना ज्यादा इसका। Now moving forward, this is where the Lenskart entered the market with three propositions. First, being the cost, convenience and variety. These are the three places जहाँ पे Lenskart ने सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने अपने कॉस्ट इफेक्टिव की in the following way I am going to explain you कैसे कैसे उन्होंने उसको हिंडर किया। Now जहाँ पे देख सकते हैं टाइटन आई प्लस, टाइटन आई प्लस वॉज अ क्वाइट अ रेप्यूटेड ब्रांड बैक देन, एंड उनका सबसे चीपेस्ट प्राइस जो था वो था 1500 रुपीज, जो कि उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो पीपल होते थे लोअर मिडिल क्लास वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इमेजिन फॉर एन एग्जांपल, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसकी डेली इनकम नियर अबाउट 500 टू 600 रुपीज है। अब उसको पता चलता है कि उससे किसी फैमिली मेंबर को या उसके बेटे को या बेटी को, उसके चाइल्ड को रिक्वायरमेंट है टेस्ट की।
Now, how come is he gonna afford 1500 rupees? Because at a certain point अगर इमरजेंसी में आ जाए तो इतना ज़्यादा अमाउंट उसको गैदर करने में समय लगेगा एंड इतना इजीली नहीं होगा। दो ही विल मेक श्योर कि वो ऐसा करे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है उसके बेटे की, उसके बच्चे की। वेयरएज़ लेंसकार्ट उन्होंने क्या किया, उनका जो सबसे बेस प्राइस था वो था 250 रुपीज़। नाउ 250 रुपीज़ इज़ क्वाइट एन अफोर्डेबल प्राइस एंड इसके साथ-साथ वो 250 रुपीज़ में फ्रेम तो दे ही रहे थे, साथ में रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड करा दे रहे थे, वारंटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ एंड उनकी गारंटी भी होती थी प्रोडक्ट्स की कि अगर कोई इश्यू हो तो वो उसको रिज़ॉल्व करेंगे। नाउ कन्वीनियंस, नाउ चूज़िंग लेंसकार्ट एक काफ़ी सारी कन्वीनिएंट मेथड हो गया था आपके पास, क्योंकि ये लेंसकार्ट ने सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने की थी, उस समय टेक्नोलॉजी बूम पे थी अपने, नई-नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही थी, ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा था। So e-commerce was just starting at the from the very base. इन्होंने उसी प्लेटफॉर्म को चूज किया एंड एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्होंने अपनी वर्क करना शुरू किया। ना जो लेंसकार्ट के प्रोपोजिशन थे उनमें कन्वीनियंस में कुछ चीज़ें ऑफर करते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी पहले देखा कि लीगल मेथड में जो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड होता था स्पेक्स को परचेज करने का, उसमें आपको ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ता था। ऑप्टिशियन आपका चेकअप करेगा एंड ऑप्टिशियन उसके बाद आपको 1 हफ्ते तक वेट करेगा क्योंकि जिसमें वो बनाएगा। बनाने में वो उसके एरर भी हो सकती है एंड डिलीवरी करने में लेट हो सकता है, जिसके चलते आपको 1 से डेढ़ हफ्ते तक वेट करना पड़ता था। व्हेयरएज़ लेंसकार्ट ने क्या किया, दे वुड डिलीवर विदिन द 72 आवर्स। उन्होंने प्रोपोज़िशन बनाया एंड दे मेंट इट। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने 72 आवर्स में डिलीवर करेंगे, दे डिड डिलीवर इट बिटवीन द 72 आवर्स, विदिन द 72 आवर्स, सॉरी। सो वो ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी सारे फ्रेम को ऑटोमेशन की यूज़ से बना रहे थे, जिसकी वजह से चलते उनकी एरर काफ़ी कम हो गई थी एंड मिस्टेक्स काफ़ी कम हो रही थी एंड स्पीड जो थी प्रोडक्शन की वो काफ़ी बढ़ गई थी। नाउ सिर्फ इतना ही नहीं था, आपके पास वैरायटी थी। नियरली 5000 प्लस फ्रेम्स थे जिसमें से आपको चूज़ करना था अपने रिकॉर्डिंग। नाउ उन्होंने इसको इसलिए चूज़ करने को इतनी ज़्यादा वैरायटी दी क्योंकि वो माइंडसेट में चेंज लाना चाहते थे, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो एज़ सिर्फ टेक्निकल या मेडिकल इक्विपमेंट ना लेके एक लाइफ़स्टाइल इक्विपमेंट की तरह उसको बेचना चाह रहे थे स्पेक्स को। जिसके चलते उन्होंने अपने जो उनके एडवर्टाइज़मेंट और जो उनका मार्केटिंग टेक्निक थी, उसमें भी उन लोगों ने वो एज़ एन आईवेयर स्पेक्स को एक लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड किया। देन उससे इतना ही नहीं था, अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू अगर कोई वेबसाइट के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, देन आपको कई बार एक क्या होता है कि पसंद नहीं आता। लाइक हम लोग को फ़ील करने में उतना टच वाला फ़ील होता है, उतना पसंद नहीं आता, स्पेशली इन इंडिया। सो उन्होंने प्रोपोज़िशन एक और रखा कि वी विल डू 14 डेज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। 14 डेज़ के अंदर ये उस समय बिल्कुल नहीं थी, अब काफ़ी कॉमन हो गई है, बट बैक देन इट वाज़ क्वाइट रेयर, कोई ऐसा नहीं करता था। बट दे डिड इट बिकॉज़ उनको अपने प्रोडक्ट पे एंड उनको अपने प्रोडक्शन पे भरोसा था। देन they provided the best part. They provided the perks of branded products at the price of an unbranded one. वो 250, 500, 700 के प्राइस पॉइंट पे भी जो मिडिल क्लास खरीदता है जनरली, उस प्राइस पॉइंट पे भी वो ऐसे फीचर्स एंड ऐसे मतलब पर्क्स प्रोवाइड करा रहे थे, जो 2 से 3000 वाले जो स्पेक्स की कंपनीज़ हैं, आईवेयर कंपनीज़ हैं, वो प्रोवाइड कराती थी। वो भी एट अ बेस लेवल पे। व्हेयरएज़ इसी प्राइस पॉइंट के अंदर वो काफ़ी फैशनेबल भी थे। देन लेंसकार्ट डिलीवर्ड देयर प्रोडक्ट्स विद ज़ीरो एरर टॉलरेंस। अगेन लेंसकार्ट जो था उन्होंने भी ज़ीरो एरर टॉलरेंस के थ्रू अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था। अगर उसमें हल्का सा माइनर भी डिफेक्ट था, दे यूज्ड टू जस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दे वुड बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच। जिसकी वजह से जो जो भी हम लोग कस्टमर जो होता था, परचेज़ करता था, उनको वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट मिलता था जो वो एस्टिमेट करता था, जिसके लिए वो पे करने वाला था। जिसके चलते आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि ई-कॉमर्स की दुनिया में अगर आप सर्च करें, देन यू वुड रियलाइज़ कि 15% का रिटर्न पॉलिसी भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। दैट इज़, लेट मी इलैबोरेट, अगर 100 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 प्रोडक्ट्स किसी ने बेचे हैं ई-कॉमर्स के थ्रू एंड उसमें से नियरली अगर सिर्फ 15% ही रिटर्न हो रहे हैं, फिर 15% 15 लोगों ने ही सिर्फ उसको रिटर्न किया है या रिफंड करवाया है, वो भी काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता था, अच्छा गोल माना जाता था। व्हेयरएज़ क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दिस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेंसकार्ट का जो रेट था वो जस्ट 4.6 था। यानी कि सिर्फ 4.6% लोग ही जो थे उसको शायद रिटर्न या रिफंड कराते थे, व्हिच वाज़ क्वाइट प्रॉफिटेबल। And as a result, Lenskart eliminated middlemen and was able to manage the cost cutting up to 70%.
इसी की वजह से उनकी कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है एंड वो डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि अपने मिडलमैन को पहले एलिमिनेट किया, जिसकी वजह से कॉस्ट कट कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ सेइंग, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा ऑटोमेशन पे बेस्ड था एंड जीरो एरर पे था, इसलिए वो रीबिल्ड या री मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा था। इसकी वजह से उनकी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम आ गई थी, क्योंकि मटेरियल प्रॉपर यूटिलाइज हो पा रहा था उनका। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ टैकलिंग द अडॉप्शन चैलेंजेस। नाउ अब कोई भी अगर आप नया बिजनेस खोलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जस्ट अ रिमाइंडर, या नाउ टैकलिंग द अडॉप्शन चैलेंजेस, ये काफी क्रूशियल एंड काफी रियल थिंग है। जब भी कोई भी आप नया बिजनेस खोलते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, या किससे उसको भरोसा दिलवाएंगे कि आपका प्रोडक्ट एंड आपके सर्विसेज को ही वो चूज करे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगेन उन्होंने स्टार्टिंग के फेजेस में कुछ चीजें की, जैसे कि टू lure the skeptics of an e-commerce, they introduce offers like free frames। जब भी उन्होंने देखा कि जेनजी जो नई जनरेशन थी, जो इनका एज ब्रैकेट 17 से लेकर 25 तक था, उस एज ब्रैकेट में काफी ज्यादा उनको मतलब कस्टमर्स मिल रहे थे, क्योंकि वो अपने नए फैशन ट्रेंड्स को आजमाना चाह रहे थे एंड दे वर क्वाइट रिलेवेंट एंड क्वाइट फ्रेंडली विद द टेक्नोलॉजी बैक देन एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन। सो उन्होंने उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक तो नए नए डिजाइन लाए, वो फंकी फंकी डिजाइन लाए एंड काफी प्रैक्टिकल एंड काफी अच्छी क्वालिटी के डिजाइन लाए। नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक और प्रोपोजिशन रखा कि फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स पे अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट का कोई परचेज करेंगे, देन आपको एक फ्री फ्रेम अलग से मिलेगा। दैट इज आप अपनी चॉइस के मतलब एक के पे करने पे आप दो दो पा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर लॉयल्टी बढ़ी एंड कस्टमर बार बार उनके पास आने लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, प्राइसिंग अच्छी थी। सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्राइसिंग। इंडिया इज क्वाइट अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री मार्केट। सो इसकी वजह से उन लोगों ने ऐसी पॉलिसीज लाना शुरू किया एंड इट वाज अ वेरी लिमिटेड ड्यूरेशन। जब तक उन्होंने देखा कि एक ही कस्टमर पास बार बार आने लगे हैं एंड काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, उन्होंने ये पॉलिसीज को थोड़ा चेंज करना शुरू किया। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर एंड मैनेज टू मेक एन आईवेयर अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। अगेन ना सबसे बड़ा लोगों को डर था कि वो उसको चेक कैसे करेंगे कि जो स्पेक्स वो खरीद रहे हैं या जो पेयर ऑफ आईवेयर वो खरीद रहे हैं, वो उनको सूट करेगा कि नहीं करेगा, या उनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे मैच करेगा, या उनकी नीड के हिसाब से कैसे फुलफिल करेगा। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का गेन काफी यूज किया एंड दे बिल्ट अ वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर। दैट इज उन्होंने वर्चुअली एक जीयूआई बनाया, एआई बनाया, जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके आपके फ्रेम्स के सजेस्ट करता था। ना ही सिर्फ सजेस्ट करता था, बाकी बल्कि आपकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आपको फेस रिकॉग्निशन करके आपको ट्राई ऑन करने का ऑप्शन भी देता था। मतलब वर्चुअली आप देख सकते थे कि कोई पर्टिकुलर फ्रेम जो परचेज करने वाले हैं वो आप पे कैसा लगेगा, जिसके चलते आपको सिर्फ थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव भी मिलता था। So it was quite an innovative way. Then they eliminated the need to go to the optician by enabling the customer to go their need to get their eyes checked in the comfort of their home. Now again, what they did was उन्होंने इजराइल की कंपनी को कांटेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने फंडिंग पाई। देन व्हाट दे डिड कि अगर आप फर्स्ट टाइम कस्टमर हैं, यस सर, ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम कस्टमर हैं एंड यू आर क्वाइट ओल्ड एंड यू कांट मैनेज टू गो टू एन ऑप्टिमिस्ट, देन वो फीचर प्रोवाइड करते थे लाइक आफ्टर by charging very few charges, they would give you the privilege of getting yourself optician at your home, जो आपके घर आके आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके आपकी आई चेक करेगा, आपको ट्रीटमेंट बताएगा एंड आपको सजेशंस भी देगा। सो दैट जैसे कि ओल्डर जनरेशन होती है, इट इज क्वाइट कम्बरसम फॉर देम टू गो टू एन ऑप्टिशियन। या नाउ मूविंग फॉरवर्ड, या नाउ दिस इज व्हाट इट वाज। उन लोगों ने लेंसकार्ट में सिर्फ ये बेसिक चीजों पे वर्क करके, इन सब चीजों से उन लोगों ने इतने अपनी कंपनी को मल्टी बिलियनर कंपनी बनाया। एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर सिर्फ 10 साल इस कंपनी को हो आए हैं। एंड लेट मी जस्ट गो अपवर्ड्स अप द स्लाइड। यप, कैन यू सी द चार्ट?
Yeah. So okay. So हम लोग देख सकते हैं कि when the financial year of 2020 ended, the revenue generated by Titan Eye Plus, which is a quite renowned company, उनका अगर revenue generate करें past year के comparison में, then it was rupees 511 crore. And when the year ended, the preceding year ended, then they were just at the market cap of 544 crores, which was just the growth of 6%. Whereas लेंसकार्ट सिर्फ एक कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल फैसिलिटीज के साथ बेच रहा था, जिसके चलते उनका जो मंथली रेवेन्यू हुआ, ईयरली रेवेन्यू हुआ, गेन हुआ, वो था जहाँ नियरली 98.5% का, जहाँ पे पास्ट ईयर वो 485 करोड़ का जनरेट किया था। वेयर जब ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जब उन्होंने मार्केट कैप निकाला अपना, इट वाज रफली नियर अबाउट 963 करोड़। हम देख सकते इट वाज नियरली डबल विद इन अ ईयर। सो ये प्रॉफिट उनको हुआ वो अपने बिजनेस एथिक्स की वजह से एंड मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से। एंड नॉट ओनली दैट, उनको अपने प्रोडक्ट पे एंड अपनी विजन पे भरोसा था। बिकॉज ऑफ सेम वो एक मल्टी बिलियनर कंपनी बन गई। एंड नाउ एट द करंट टाइम्स Lenskart is worth at nearly about $2.5 billion. For perspective, it is 106th company at the such point, which is worth highest from the top. Now, at the end, I would like to present the ideas and the lessons we should learn from Mr. Piyush Bansal. Just a moment. Yeah, lessons to learn. Now, whenever there is an evolution in technology, either the product or the supply chain has to be changed, and sometimes both. Again, इसका सबसे relevant example अभी recent times हम लोग सबने experience किया. When the pandemic happened, the supply chain was shattered. प्रोडक्शन रुक चुका था, सप्लाई चेन हिंडर कर गई थी, तो कोई सब जगह स्टैंड स्टिल पे आ गए थे। दो द कंपनीज लाइक लेंसकार्ट दे केप्ट ऑन ग्रोइंग। कैसे? उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया समय के साथ एंड नए नए प्रोडक्ट्स लाते गए, जिसकी वजह से जो करंट नीड थी वो फुलफिल होती गई। जो नए उन्होंने नए कस्टमर्स ग्रो किए, उन्होंने सप्लाई चेन को और अडेप्ट किया एंड देखा कि कहाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन लोगों ने उस हिसाब से उस जगह पे इन्वेस्ट किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, every time you see a mandatory and unbiasable pain point that is being leveraged by the corporations, you are looking at the mammoth business opportunity. Again, जैसे कि इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे एक आईवेयर कंपनी जो कि बहुत कम चार्जेस में एक प्रोडक्ट जनरेट कर सकती है, yet they charge so much higher as compared to the other, and without considering कि उनका कस्टमर जो है अदर एंड पे वो उसको अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं। So this was an exploitation of the customer because they knew कि कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा क्योंकि ये नीड है। अदरवाइज उनको चीपर ऑप्शन में सेटल करना पड़ेगा एंड चीपर ऑप्शंस वर नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी। So yeah, that was it, and if you guys have any queries then do ask, or else we would like to end the session. Yeah, yeah, That was interesting and intriguing to know. Thank you so much, Ayush sir, for presenting this case study with your persuasive words.
Knowing that entrepreneurs begin with such basic ideas and turn this into much successful streak is fascinating. With this, we come to end of today's webinar. I'm sure all of us have enjoyed this wonderful session. I thank to all dignitaries in our club as well as the college for providing us to organize this session. Thank you. And at the end, I would like to request that